my YouTube channel in which I will explain you the different kind of services provided by the retailer to the wholesaler and to the consumers. In previous lectures, I have explained you services provided by the wholesaler to the manufacturer and retailer. So today I will explain you what are the different kind of services provided by the retailer to the wholesaler and consumers. And first I would like to explain you services to the wholesaler, in which the first point is connecting link. The retailer is the connecting link between wholesaler and consumer. Retailer provide different kind of goods to the consumers with the help of wholesaler. Wholesaler buy the goods from the producer, sell the goods to the retailers, and retailer sell the goods to the consumers. Which means the first service provided by the retailer is he is the connecting link between wholesaler and consumers. Second point, helps to distribute. Yes, very simple. Retailer helps wholesaler to distribute his goods to the different kind of consumers. Wholesaler buy the goods in the large number from the manufacturer and sell them to the different kind of retailers. Retailer sell the goods to the consumers, which means retailer provide distribution services to the different kind of wholesaler. Then third one, marketing. Yes, marketing means giving an information about any kind of product. अब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो रिटेलर है वो होलसेलर को प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है. सही बात है. कंज्यूमर्स को कुछ भी नया चाहिए रहेगा तो वो किसको बताएगा? रिटेलर को. और रिटेलर किसको जाके बताएगा? होलसेलर को. और होलसेलर जाके किसको इन्फॉर्म करता है? प्रोड्यूसर को. और प्रोड्यूसर भी वही क्या करता है? वही हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएगा और किसको सप्लाई करेगा? होलसेलर को. होलसेलर किसको प्रोवाइड करेगा? रिटेलर को. और रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर्स को. मतलब ये वाला पॉइंट मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स की जो भी डिमांड रहेगी उसको पूरी करने का जो होलसेलर की रिस्पांसिबिलिटीज होती है उसमें उसको सपोर्ट कॉल करता है रिटेलर. एंड इन दिस वे retailer provide each and every information about the market to the wholesaler. With the help of marketing, various kind of information is also provided by the retailer to the to the wholesaler. For example, likes, dislike of consumers. Regarding on that, wholesaler buy the goods from the producer. तो wholesaler की सबसे बड़ी हेल्प क्या होती है? रिटेलर यही हेल्प करता है कि इसको मार्केट का इंफॉर्मेशन देता है. होलसेलर क्या करता है? कंपनी में जाके प्रोडक्ट बाय करता है. और इसलिए कहा गया है रिटेलर जो है वो होलसेलर को ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन, अट्रैक्ट कंज्यूमर्स. यस, व्हेनेवर होलसेलर ब्रिंग द न्यू प्रोडक्ट, retailer helps him to distribute the product to the different kind of consumers by display. Retailer display the different goods in his shop, due to which the customer get attracted and they buy the product, which means retailer helps wholesaler to attract the consumers by displaying different kind of product in his shop. और रिटेलर क्या करता है? होलसेलर की मदद करता है. होलसेलर कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएगा, उस प्रोडक्ट को वो अपने दुकान में रखता है, कंज्यूमर्स आके देखता है और इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और फिर कंज्यूमर क्या करता है? उसको बाय कर लेता है. जिससे बेनिफिट क्या होता है? होलसेलर का वो प्रोडक्ट क्या होता है? बिक जाता है. And the last point is create demand. Yes, कंज्यूमर्स को जो भी चाहिए रहेगा वो रिटेलर को बोलेगा, रिटेलर किसको जाके वो इन्फॉर्म करेगा? होलसेलर.
और होलसेलर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को बातें बताएगा और प्रोड्यूसर का सामान क्या होगा, बिकने में मदद होता है, क्योंकि क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है। मतलब अगर कंज्यूमर्स को कुछ चाहिए तो वो सीधा होलसेलर के पास नहीं जा सकता है ना प्रोड्यूसर के पास, तो किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। और रिटेलर खुद प्रोड्यूसर के पास डायरेक्टली नहीं जाता, वो किसके पास जाएगा, होलसेलर। होलसेलर को प्रोडक्ट के बारे में बताएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, डिमांड में आएगा, क्योंकि होलसेलर जाके कंपनी से खरीद के किसको बेचेगा, रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर्स को। सो ये वो कुछ सर्विसेज हैं जो रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड करता है। लाइक रिटेलर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। Retailer help wholesaler to distribute the different kind of goods to a different kind of consumers. Retailer provide marketing facilities to the wholesaler. He also provide different kind of information given by the wholesaler to the retailer. Retailer pass the information to the consumers. Regarding on that, consumers buy the product. Retailer helps consumers by attracting, which help the wholesaler to sell the goods. And finally, with the help of retailer, there is a demand created for goods or product which is fulfilled by the wholesaler. So these are the various kind of services provided by the wholesaler and to the retailers. And now next I will like to explain you different types of services provided to the consumers by retailer. ये बहुत सिंपल गिरेगा, क्योंकि रिटेलर का मतलब सबको पता है, एक शॉपकीपर, आपके घर के बाहर भी रिटेलर्स होते होंगे और ये भी आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। आई एम सॉरी, यस, रिटेलर्स ऑलवेज प्रोवाइड रेगुलर बेसिस डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स। Whenever consumers want, they can get a different kind of variety of goods from the retailers without facing any kind of problem. Next, local convenience. Local convenience means like giving them home delivery benefit, different kind of convenience the retailer provide to the consumers. For example, आपके घर के बाहर की दुकान वाला है, आप उसको जाके ऑर्डर दे देते हो, वो आपके घर पे सामान लाके दे देता है। और इसलिए कहा गया है convenience मतलब different kind of benefit given by the retailer to the consumers, और उसमें पहला बेनिफिट है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी का मतलब सबको पता है कि आप अपने दुकान वाले के पास जाते हो, सामान लिखवा देते हो और वो आपको घर पे लाके सामान दे देता है। अब ये कन्वीनियंस है, कस्टमर को कोई भी तकलीफ नहीं होती है, रिटेलर सामान घर पे लाके क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। इससे फायदा क्या होता है, मार्केट में वो शॉपकीपर और रिटेलर का नाम इंक्रीज होता है, जिससे इसके बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड होता है। Next point, variety of goods. Yes, retailers deal with the variety of goods. They sell different kind of product in their shop. तो कस्टमर को ये फायदा होता है कि इनको 10 जगह जाना नहीं पड़ता है, एक ही दुकान के नीचे उनको क्या मिलता है, अलग अलग टाइप का गुड्स मिल जाता है। और कंज्यूमर्स के लिए यही अच्छी बात है कि बिना कोई ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के उनको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स क्या होता है, एक ही दुकान में मिल जाता है। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटीज, जिसको आप उधारी कहते हैं। रिटेलर आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर्स। अगर पैसा भी इनको उधारी पे देता है, कम हो गया तो बोलता है बाद में दे देना, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है रिटेलर अपने कंज्यूमर्स को। इससे बेनिफिट क्या होगा, दुकान वाले का मार्केट में नाम बनता है, पर उसका सामान भी बिक जाता है और उसको पता है आगे चल के मेरा पैसा भी वापस आएगा। And this is the reason retailer provides credit facilities to its customer or consumers. And the last one is very famous, after sales and services. आजकल के रिटेलर्स अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बेचने के बाद भी क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सामान खरीदा, मैंने ये मार्कर खरीदा, मार्कर खराब निकल गया, मैं दुकान वाले के पास जाता हूँ, वो मुझे रिप्लेस करके दे देता है। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है अगर ये मार्कर रिप्लेस नहीं करूँगा तो मेरी नज़र में उसका इमेज खराब हो जाएगा, फिर मैं उसके यहाँ से प्रोडक्ट बाय नहीं करूँगा। मैं प्रोडक्ट बाय नहीं करूँगा तो 4 लोग को जाके बताऊँगा कि दुकान वाला अच्छी सर्विस नहीं देता है, और इसका इफेक्ट किधर गिरेगा, रिटेलर्स के बिजनेस पे ही गिरेगा।
और इस सारे बैड मार्केटिंग से बचने के लिए रिटेलर जो है अपने कंज्यूमर्स को ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस, अगर आगे चल के सामान कुछ खराब हुआ या कुछ खराबी आ गई तो रिटेलर क्या करता है, उसको चेंज या रिप्लेस करके दे देता है। इसीलिए वारंटी गारंटी जैसा कंसेप्ट मार्केट में अवेलेबल। तो दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज provided by the retailer to the consumers, like regular supply of goods. Retailer provide various kind of local convenience to the consumers by giving them home delivery, so that they don't have to waste money on their transportation. Retailer deals in the variety of goods. They also provide credit facilities to their local consumers, and finally after sales and services. Because of all these services, retailers earn a good image in the market, due to which he get a large number of benefit in the business. So this is the basic services of retailer which provided to the wholesaler as well as to the consumers. I hope the concept is clear. Thank you very much.